به نام خداوند جان و خرد. درس 2، تاریخ ایران از ظهور اسلام تا حمله مغول. دیروز ما تاریخ ایران رو خوندیم قبل از اسلام، یعنی دوره باستانی رو خوندیم و دیدیم که قبل از اسلام در ایران 4 دوره حکومت داشتن اینا. یعنی یکی از اونها ماد بود. ماد از حدود تقریبا 701 یا 700 سال پیش قبل مسیح به نظر من شروع شده و تا بعد از اسلام 636 به نظر من. یعنی حدود این 4 دوره داشتن اینا، ولی یک دوره سلوکیان هم داشتن که اینا تو کتاب ذکر نکردن. به هر حال که ما الان میبینیم که وقتی که ایران مشرف به اسلام شد، یعنی اسلام پذیرفتن یا عرب ها ایران رو تحت سیطره خود در آوردن، از اونجا تا حمله مغول. حمله مغول این هم یک واقعه، یک رخداد خیلی بزرگ تاریخی هست که تمام ایران و حتی حکومت اسلامی را اینا برچیدن و حکومت میدونید که شما عباسی رو دیگه از بین بردن. دیگه اینو میدونید که شما حمله مغول از نظر تاریخی خیلی مهمه. میبینیم که مسجد عتیق شیراز، این یه مسجدی هست به نام مسجد عتیق. نام مسجد عتیق هست. عتیق یعنی قدیمی، انتیک معنی میده. شیراز این مسجد قرار داره. این یک مسجد خیلی قدیمی هست. من هم اینجا رفتم، اینجا رو دیدم. مسجد قشنگیه، خیلی بزرگه. آل بویه یه سلسله حکومت بود که بعد از اسلام در ایران بوده. سلسله‌ای که در قرن 4 هجری قمری توسط پسران آل بویه ماهیگیری از اهالی شمال ایران تأسیس شد. یعنی پس آل بویه کی بوده؟ یعنی یه سلسله حکومت هست که در سطح کوچکتر بوده، این بزرگ نبوده. این آل بویه که توسط یک ماهیگیر از اهالی شمال تأسیس شده بود، پسرانش این سلسله حکومت رو تأسیس کرد. پیروزی یعنی به این مخالف شکسته، یعنی گشودن، فاتح شدن، پیروزی. گنبد علویان، این یه گنبد هست. گنبد که میدونید که در مساجد و این چیزها قرار داره. یه گنبد هست، یه مسجدی هست که یه جایی هست، ساختمانیه که نامش گنبد علویه. خب تأسیس شدن یعنی مصدر مجهول تأسیس کردن. تأسیس کردن یعنی بنا نهادن، یه چیزی رو تشکیل کردن. تأسیس شدن این مجهوله، یعنی فاعلش شناخته نیست. ترک نژاد یعنی دارای نژاد ترک، از نژاد ترک. خب خندان یعنی در حال خنده، این هست صفت حالیه. خنده این اسم گریه به معنی مخالف گریه است. زردپوست دارای پوست زرد. زنده شدن این مخالف مردن. اگر کلمه متوجه نشدید حتما بپرسید، من اردو هم برای شما توضیح میدم. سامانیان، دیدید که ساسانیان آخرین دوره حکومت قبل از اسلام بوده و سامانیان هم یکی از اولین حکومت‌های بعد از اسلامه. سلسله‌ای که توسط یکی از بزرگان سمرقند از روستایی به نام سامان تأسیس شد. سمرقند اکنون در جمهوری ازبکستان واقع است. ببینید که اون موقع این ماوراءالنهر معروف بود که این منطقه فارسی زبان بود. الان هم ازبکستان، بعضی از قسمت‌های ازبکستان، تاجیکستان یا افغانستان، اینها فارسی دریس صحبت میکنن، تکلم میکنن. سلجوقیان، سلجوق هم میدونید که شما یک سلسله حکومت، سلسله‌ای که در قرن 5 هجری قمری توسط نوه سلجوق، یکی از سران ترک نژاد تأسیس شد. عظمت نیست، این عظمت یعنی این کلمه عربیه به معنی بزرگی. قدرت این هم کلمه عربیه به معنی نیرو، قدرت، نیرو، پاور. کشته شدن این مجهول کشتن هست، کشته شدن.
خب گریان این هم صفت حالیه هست، مثل خندان، گریان در حال گریه، خندان در حال خنده. گریستن، گیر ر ساکنه، گریستن یعنی گریه کردن، به معنی گریه کردن، مخالف خندیدنه. ماهیگیر کسی که کارش گرفتن و فروختن ماهی است. نیمه، نیم یا نصف، به معنی نیمه یعنی نصف یا نیم. دیدید این گنبد علویان بوده. این یه مینار رو میبینید که شما، این برج در واقع برج گنبد قابوس این نام داره، برج گنبد قابوس. قلعه الموت، قلعه الموت این هم یه قلعه هست که راجع به حسن بن صباح مربوط میشه. خب قلعه بابک، این هم قلعه بابک معروفه. گنبد کبود مراغه، گنبد کبود مراغه، اینها آثار باستانی و تاریخی دوره اسلامی هست که از دوره اسلامی گرفته، یعنی از زمان حمله عرب ها تا حمله مغول. در این وسط این ساختمان ها ساختن الان هم باقی هستن و این یک اهمیت تاریخی و فرهنگی داره. در حال این متن رو ما بعد از این توضیح نکته های دستوری شروع میکنیم و میخوانیم. نکته اول دستوریمون امروز در مورد مصدر و ستاک هست. مصدر و ستاک. خدمت شما گفتم که زبان فارسی مصدر با دن و تن تموم میشه، یعنی رفتن و آمدن. و گفتم که دو تا ستاک داره، ستاک گذشته و ستاک حال. ستاک گذشته گفتم که ستاک گذشته با حذف نون مصدر به دست می آید، یعنی خیلی راحته. ساختن ستاک گذشته خیلی راحت هست. چرا؟ که فقط نون رو حذف می کنیم. این راحت، مشکل نیست. یک قانونمند دستورمنده که ما به راحتی می توانیم بسازیم. ولی ستاک حال رو گفتم که یک قانون مشخص، یک قانون کلیه نداریم. خب چون یک قانون مشخص، قانون کلی نداریم، از ابتدا یعنی از کلاس اول تا کنون من خدمت شما گفتم که شما به جای این که بروید قانون ستاک حال رو یاد بگیرید، بهتره وقتی که مصدر رو یاد میگیرید ستاک حال رو هم یاد بگیرید. این راحته، این بهترین راهه که ستاک حال رو یاد بگیرید. ولی به هر حال یک قوانینی وجود داره که از لحاظ اون قوانین ما ستاک حال رو درست میکنیم. ولی مشکل اینجاست که این گروه ها یا این قوانین خودش هم استثناءات زیادی دارن. به خاطر این هم مشکل سازه. درسته یک کمی تلاش کرده، سعی کرده که این ستاک حال رو به 8 گروه تقسیم کنن و یک قانونی براش درست کنن، یه دستورمند بسازن اینها رو، ولی کاملا اینها چیز نبودن، موفق نبودن در این کار و این ستاک های با قاعده و بی قاعده موجود داره و استثناءات زیادی هم وجود داره. خب میبینیم که چی گفته اینجا. مصدرهای فارسی از نظر شکل آنها به 8 گروه تقسیم میشوند. این درسته، یعنی تمام مصدرهای فارسی رو ما میبینیم که به 8 گروه تقسیم کرده اند. یعنی 8 گروه هست. یعنی تمام مصدرها رو ببینید که به 8 گروه تقسیم میشه و کدوم ها هستن رو میبینید. هر گروه شامل ستاک های با قاعده و بی قاعده یا استثناست. یعنی این تمام 8 گروه، بعضی از مصدرها ستاک حالشون با قاعده هست، یعنی قانونمند دستورمنده، و بعضی از اونها بی قاعده هست، یعنی بدون هیچ قانونی، مثل irregular verbs انگلیسی ساخته میشه، یعنی استثناء هست. خب ما میبینیم که چی هست الان. ستاک حال با قاعده ستاکی است که بدون تغییر از مصدر گرفته میشود. ستاک حال بی قاعده استثناء ستاکی است که با تغییرات از مصدر به دست می آید. پس با قاعده، ستاک با قاعده چیه؟ که مصدر رو تغییر نمیدیم، فقط یه چیزی بهش اضافه میکنیم. یعنی یه چیزی
مصدر رو یعنی شناسه رو فقط میتونیم اضافه کنیم، درسته؟ ولی ستاک بیقاعده چیه؟ قانونمند نیست، یه تغییری در آن ایجاد میشه، یه تغییری در آن ایجاد میشه. خب ما الان میبینیم که همه ستاک های گذشته با قاعده هست، یعنی اینو خدمت شما گفتم که ستاک گذشته مشکل نداره، همه با قاعده هست، یعنی قانونمنده، دستورمنده که راحت ما میتوانیم بفهمیم. خب پس مصدرهایی داریم ما که به ایدن تموم میشه، یعنی بعضی از مصدرهای فارسی به ایدن تموم میشه. مثلا شامیدن، بخشیدن، آشامیدن، بخشیدن، پرستیدن، پریدن، نوشیدن، باریدن، بوسیدن، پرسیدن. خب پرستیدن اینجا اومده، بوشیدن، یعنی این همه مصدرها رو ببینید ایدن اومده، یعنی تمام این مصدرها در آخرش ایدن داره، ایدن داره. خب وقتی که برای ستاک حال بسازیم ایدن رو ما حذف میکنیم، ایدن رو حذف میکنیم، راحته. ولی استثناء هم داره، ولی استثناء هم داره، مثل آفریدن آفر نمیشه، یعنی اینها این قسمت قانونمنده، درسته؟ این مطابق قانون فقط از آخر ایدن رو حذف میکنیم. ولی بعضی از مصدرها وجود داره که به ایدن تموم شده، ولی چیکار میکنیم که این قانونمند نیست، دستورمند نیست، که ما فقط با حذف ایدن نمیتوانیم ستاک حال بسازیم. پس اینا استثناء هست یا تغییراتی در آن ایجاد میشه، به خاطر این ما میتوانیم که اینا بی قاعده هستند، با قاعده نیستند. مثلا آفریدن ایدن رو حذف میکنیم که درست نمیشه، آفر نمیشه، پس باید بگیم آفرین یا آفرید. شنیدن هم شن نمیگیم، ما شن نمیگیم، فقط ایدن رو حذف میکنیم و شن نمیگیم، میگیم شنو. دیدن هم دی نمیگیم، بین میگیم. بله सर आप जब आप ये बता रहे थे पहला ये जो रूल बता रहे थे उस वक्त आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ सका। अगर आप इसे दोबारा रिपीट कर दें एक बार। कहाँ से सर ये जब आप मज़दर बता रहे थे ना सारे, आशामीदन, बख्शीदन, पुरसीदन, इसके हवाले से कुछ जो चीज़ें बता रहे थे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ सकी आपकी। बाद में आप वीडियो में भी देख सकते हैं, उसमें क्लियर आवाज़ होगी। दूसरी बात है कि मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि देखें ये जो मस्दर है ईदन पे ख़त्म होने वाले मस्दर है, ईदन पे ख़त्म होने वाले मस्दर है, इससे सिता के हाल बनाने का तरीका ये है कि हम ईदन को हज़्फ कर देंगे, बाकी जो लफ्ज़ बाकी बचेगा वो सिता के हाल है। नून को हज़्फ करने से सिता की गुज़श्ते, पूरे ईदन को हटाने से यानी ये दाल नून दाल को हटाने से सिता के हाल बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ इस्तिस्ना है, इस्तिस्ना में आफरीदन से आफरीन हो जाता है, ठीक है। आफर नहीं कह सकते हम, आफ नहीं कहेंगे। शनीदन से शन नहीं कह सकते, शिनो कहना पड़ेगा। यानी ये तीन जो है और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन इस्तिस्ना है, इस कानून के मुताबिक नहीं है। ग्रुप तो सेम है, ग्रुप तो सेम है, लेकिन ये ऊपर वाले कानूनमंद है, नीचे वाले गैर कानूनमंद है या बेकायदे है। अब आगे बात समझ में? जी सर। चले, दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है दन पे ख़त्म होने वाले मसादिर, यानी बे कलिमा, ये बेहरफ दन थमुनिशे, मिस्ल आवर्दन, खुर्दन, मानदन, ठेकांदन, रांदन। मसादिर دیگه هم وجود دارن ولی ما به خاطر اینکه این کتاب رو زودتر تموم کنیم دنبال آنها نمیریم که این مصادر رو اگر نگاه کنید دقت میکنید، دن رو اگر حذف کنیم، اگر इनमें से हम दन को हटा दें तो सिता के हाल बन जाएगा, नून को हटा दें तो सिता के गुज़श्ते बन जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ इस्तिस्ना है, इसमें भी कुछ इस्तिस्ना है। वो क्या है? मिसाल के तौर पर
आमदन में से दन को हटाने से आम बन जाएगा, लेकिन आम हमारा नहीं है, मीम को भी हटा देंगे, ये इस्तिस्ना है। आमदन आ और आमद। बुरदन में दन को हटाने से बुर नहीं कहेंगे, हम बर कहेंगे, बर। बुर तब्दील हो गया बर में, तो ये इस्तिस्ना है। जदन में दन को हटाने से ज रह जाएगा, जा, लेकिन ज नहीं कहेंगे, लेकिन हम जन कहेंगे, नून का इजाफा करेंगे, तो इनमें तब्दीली है। दन को हटाने के बाद हम उसमें कोई तब्दीली कर देते हैं, लिहाजा ऐसे मसादिर मसादिर इस्तिस्नाई है। शुदन में शु है, शु को हम शो पढ़ देते हैं। करदन में कर होना चाहिए, कर, लेकिन हम पढ़ते हैं कुन। मुर्दन में मुर होना चाहिए, लेकिन हम मीर कर देते हैं, मीर, मीरत, तो ये इस्तिस्ना है। हमारा तीसरा ग्रुप है जो उफ्तन पे तमाम होता है, उफ्तन पे। जो हमारा तीसरा ग्रुप है वो है, हमने बताया 8 ग्रुप है हमारे पास, मसदर के 8 ग्रुप है, जिनमें जो ग्रुप में जो ईदन है, दन है, उफ्तन है, इनको हटाने से सिता के हाल बन जाता है, लेकिन इनके अंदर कुछ इस्तिस्नाई अफ़आल भी, मसादिर भी मौजूद है। जैसे पजीर उफ्तन, पजीर हो जाएगा, उफ्तन को हटाने से पजीर सिता के हाल बन जाता है, लेकिन इसमें इस्तिस्ना की कैफियत ज्यादा है, इस्तिस्ना वाले मसादिर ज्यादा है। जैसे गिरफ्तन, गिर, गिरफ्तन हो गया गिर। रफ्तन, रफ या रो, लेकिन इसका हो जाता है रफ, बाकी रह जाता है, हो जाता है रो। गुफ्तन, कू। याफ्तन, याब, याब, याफ्तन, याब। इसी तरह से मसादिर का एक ग्रुप है जो आदन पे खत्म हो रहा है, आदन पे। जैसे उफ्तादन, उफ्ताद। इस्तादन, ईस्त। फिरिस्तादन, फिरिस्त। तो इनमें क्या करते हैं, जहां आदन आ जाए वहां पे हम आदन को हटा देते हैं, तो हमारे पास सिता के हाल मिल जाता है हमें। लेकिन इसमें भी इस्तिस्ना है। जैसे जादन में अलिफ आदन को हम हटा दे, खत्म कर दे, तो जा रह जाएगा, लेकिन जा में अलिफ को साथ मिला के पढ़ेंगे हम, जा। दादन में दह, बेदह, बेदही, दह रह जाता है, देखें। ठीक है, तो ये अलिफ को हटाने के बाद सिर्फ दा पे हम लफ्ज को खत्म नहीं करते, तो ये इस्तिस्ना है। तो 8 में से 4 ग्रुप हमने पढ़ लिए, 8 में से 4 ग्रुप पढ़ लिया। एक है ईदन पे खत्म होने वाले हुरूफ, एक है दन पे खत्म होने वाले, एक है फतन पे, उफ्तन या इफ्तन पे खत्म होने वाले हुरूफ हैं, बेवाशित मसादिर हैं, और एक है आदन पे खत्म होने वाले मसादिर। ठीक है, तो इनमें देखा आपने ये जो 4 आखिर के जो एडिशंस है, जिसे हम कह सकते हैं कि पसवंद, उनको हटाने से सिता के हाल बन जाता है, लेकिन उसमें इस्तिस्नाआत की तादाद भी अच्छी खासी है। लिहाजा बेहतर यही है कि आप, ठीक है अभी तो आप लेवल 4 तक आ गए हैं, तो फिर आपके लिए ठीक है, लेकिन हम लेवल 1 में ये चीज़ें नहीं बता सकते थे, राइट। तो जदवल ज़ीरा बाशिश मसदर इस्तिस्ना के दार मतन मिबीनित पुरकुनित, ये चीज़ आप करके मुझे कह दीजिएगा कि इसमें ऐसे मसादिर लिखे जो इस्तिस्ना है, कानून के मुताबिक नहीं है, ऐसे 6 मसादिर को आप लिखे जिसका सिता के हाल और सिता की गुज़श्ता अलग अलग आप लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा। एक पॉइंट तो ये होगा, बाकी 4 हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 4 तो अभी हमने पढ़ लिए, 4 अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, राइट। दूसरा जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है मजहूल बाज़िक्र फ़ाइल। आपको पिछले सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 में, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि आपने पढ़ा कि मजहूल में फ़ाइल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए मजहूल है। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ स्ट्रक्चर ऐसे हैं कि जिनमें हम फ़ाइल को भी जिक्र करते हैं और जुमले का स्ट्रक्चर भी मजहूल का होता है। ठीक है, हम कभी कहते हैं कि यार ये इमारत फलान के हाथों बनी है, फलान के हाथों बनी है, ठीक है। ये जिसमें इंग्लिश में जो कहते हैं कि बाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रिटन बाई, ये किताब फलान बंदे के हाथों लिखी गई है, तो के हाथों हम उर्दू में कहते हैं,
फारसी में के हाथों के बजाय बेदस्ते का इस्तेमाल करते हैं हम। सेम स्ट्रक्चर है, या आप बेदस्ते का इस्तेमाल कर ले या तवस्सुते का इस्तेमाल कर ले, बेवसीले का इस्तेमाल कर ले। इसके ज़रिए हम फ़ाइल को भी जिक्र करेंगे और जुमले का स्ट्रक्चर भी आपका मजहूल का होगा। फ़ेल मजहूल मुमकिन ज़िक्र फ़ाइल हमरा बाशद, यानी ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। दौलत आल बवे बेदस्ते पिसराने बवे माहिगीर तासीस शुद, या दौलत आल बवे बेतवस्सुत पिसराने आल बवे पिसराने बवे माहिगीर तासीस शुद, या बेवसीले के साथ भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से यूनानियान अशकानियान शिकस्त खुर्दन, यूनानियों ने अशकानियों से शिकस्त खाई, यानी अशकानियों ने यूनानियों को शिकस्त दी। तो फाइल जिक्र मेंशन हो भी सकता है जुमले में। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, इन जुमलों को आप मजहूल में तब्दील करें और मुझे बताएं कि कैसे होगा स्ट्रक्चर। सवाल नंबर 2, तमरीन 2 जी आप करें। तमरीन 2 को आप मुझे बता दें कि कैसे होगा। इस्कंदर हखामनिशियान रा शिकस्त दाद। जी सर ये होगा हखामनिशियान अस सिकंदर शिकस्त शिकस्त देना, शिकस्त खाना है ना। हम उर्दू में क्या कहते हैं? शिकस्त खुर्दन, शिकस्त खाई ना। तो यहाँ शिकस्त खुर्दन आया है ना। देखिए, शिकस्त होने को शिकस्त खुर्दन कहते हैं, शिकस्त देने को शिकस्त दादन। यानी हखामनिशियान अज इस्कंदर शिकस्त खुर्दन, अशकानियान यूनानियान बीरून रांदन। यानी देखिए, दो तरीके हैं बस। आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेदस्ते, तवस्सुते, बेवसीले, अज। ये चारों में से आप की ज़बान शनासी पे मुनासिर है कि कौन सा आना चाहिए। तो यहाँ पे होना चाहिए, देखिए, यूनानियान तवस्सुते अशकानियान बीरून रांदे शुदन, बीरून रांदे शुदन को निकाले गए। जी नेक्स्ट, मा हुकूमतहाय मुस्तकिली तश्कील दादी, हुकूमतहाय मुस्तकिली बेदस्ते मा तश्कील शुद, या हुकूमतहाय मुस्तकिली बेवसीले मा तश्कील दादे शुद। तश्कील शुद या तश्कील दादे शुद, दोनों दुरुस्त है। बाकी आप कर लें, जल्दी जल्दी कर लें। आन्हा बाजारगाना ने मुगल रे कुश्ते बुदन, बाज़रगानाने मुगल अज आन्हा कश्ते बूदे शुद। नहीं, अज आन्हा नहीं हो सकता। देखें, अज आन्हा नहीं हो सकता क्योंकि तवस्सुत आन्हा, बेदस्त आन्हा, बाजारगाना ने मुगल बेदस्त आन्हा कुश्ते शुदे बुदन। मुगल ताजिर उनके हाथों मारे गए थे, मुगल ताजिर उनके हाथों मारे गए थे। उनसे मारे गए थे कि उर्दू में भी सेंस बनता है? नहीं बनता। उनके हाथों मारे गए थे, मुगल ताजिर उनके हाथों मारे गए थे। इसको हम उर्दू में अज के साथ करना चाहेंगे तो वो मुगल ताजिर उनसे मारे गए थे, उर्दू में भी सेंस बनता। ये यहाँ पे तो हम देखते हैं तो उर्दू फारसी के जुमले के कंस्ट्रक्शन और जो जुमले का जो थीम है वो सेम है स्ट्रक्चर वाइज। जी, ज़ीबातरीन रुबाइयात रा खय्याम सुरूद अस। जी, ज़ीबातरीन रुबाइयात तवस्सुत खय्याम सुरूद शुदे अन। यहाँ पे सुरूदे का क्या मतलब होगा? यहाँ पे सुरूदे यानी कंपोज करना, सुरूदन का मतलब शेर सराई करना, नगमा सराई। सुरूदन सराइदन यानी गाना, कहना। शेर कहने को शेर सुरूदन कहते हैं।
तो ज़ीबातरीन रुबाइयात तवस्सुत खय्याम सुरूद शुदे अन या अस भी आप कह सकते हैं कि चूंकि नॉन लिविंग थिंग को हम एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मा आसार बीशतरी शनासाई ख़्वाहीम कर, मा आसार बीशतरी शनासाई ख़्वाहीम कर, आसार बीशतरी तवस्सुत मा शनासाई ख़्वाहत शुद। ठीक है, तो ये मजहूल बनाने का तरीका है। कोशिश कर ले आप, जो एक्सरसाइज की किताब है उसमें से जो एक्सरसाइज है वो करें तो फिर आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। समझ में तो आ गई है लेकिन आपको बनाना भी आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो था आपका मजहूल हो सकता है, जुमलात मजहूली हो सकता है फाइल के साथ भी आए तो ये मुमकिन है। तीसरा पॉइंट है हमारा वंदहा सरफी, इनफ्लेक्शनल एफिक्सेस, यानी एफेक्स को हम उर्दू में क्या कहते हैं? वंद को हमारे यहाँ साबिका है, लाहिका है, लेकिन इन दोनों का मजमूई नाम क्या है बताएं? सर तालीक़िए कुछ इस तरह से है। तालीक़िए, तालीक़िए जो भी है, जो तालीक़ात हैं, जो भी है सर्फ होने वाले तालीक़ात, यानी वो तालीक़ात या वो वंद या वो इनफ्लेक्शनल एफिक्सेस कि जो सर्फ हो जाते हैं, जुमले में कंजुगेट हो जाते हैं, जो फेल के साथ आके इसमें सर्फ हो जाते हैं, वो कौन से हैं? ये 5-6 चीजें हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये एक तरह से जो कुछ आपने 3 सेमेस्टर में पढ़ा है उसको कंक्लूड करके यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, वंदहाय सरफी दर सर्फ फेल दरजात सिफात जम इस्म व अदद बेकार मीरवन, यानी वंदहाय सरफी वो एफिक्सेस है, वो तालीक़े है कि जो अदद के साथ, इस्म के साथ, जम इस्म के साथ, सिफत के दर्जात के साथ और फेल के साथ सर्फ होते हैं, जिनको हम सर्फ करते हैं। उसमें से एक है मी क्या है? निशाना ये हाल इखबारी व गुज़श्ता इस्तिमरारी है। तो मी एक्चुअली किसी चीज़ के कंटिन्यूएशन और कनेक्टिविटी को जाहिर करने के लिए मी का इस्तेमाल होता है। आगे बात समझ में, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में। कनेक्टिविटी, कंटिन्यूएशन, तसलसल, जारी होना, इस चीज़ को जाहिर करने के लिए मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मी खंदम, मी खंदीदम, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि शनासहाय ज़मान हालो गुज़श्ते, जो शनासे है आपके ई, अद और अन वगैरह, ये जो भी शनासे है, ये भी एक तरह से पसवंद के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक तरह से ये साबिक़े के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये लाहिक़े के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, शनासा। ठीक है, इसी तरह से बे फ़ेल अम्र व हाल इल्तिज़ामी में इस्तेमाल होता है, बेखंदत। ठीक है, इसी तरह से ना किसी भी फ़ेल को मनफी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ेल नही व नफ़ी, नखंद, नमी खंदत, इसमें आपने नमी खंदत देख लिया। इसी तरह से तर व तरीन सिफत की डिग्रीज बनाने के लिए, उसके दर्जात बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शौतर, शौतरीन। तो ये एक तरह से सर्फ हो रहा है। इसी तरह से आन, हा, आत, जात, ये सारे जमा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निशान हा ये जैम शाहान, यानी आन लाहिका है, शिकस हा लाहिका है, आत में बागात में आत लाहिका है, सब्जीजात में जात लाहिका है। तो ये लाहिक़े है कि जो सर्फ हो रही है। इसी तरह से अदद तरतीबी, ऑर्डिनल जो नंबर्स है हमारे, उसमें जो उम या उमीन लगते हैं, वो भी तरह से वो है, लाहिका है। जैसे पंजुम, पंजुमीन, हफ्तुम, हफ्तुमीन, इस तरह से। और ये है, खैर हम बाद में पढ़ेंगे मतन को पढ़ने के बाद, ये भी उसी से रिलेटेड है, आप बाद में कर लेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा वो था वंद, जर्नलाइज करके लिखा हुआ था, चाहे उसमें पसवंद भी था और पीशवंद भी था, लेकिन उसमें ज्यादातर पसवंद है। इसी तरह से जो आपका पसवंद आंद है, ये सिर्फ जमा बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते,
आन तो देखा आपने, पिसर से पिसरान जमा बनाने के लिए एक इस्तेमाल है आन का। आन को जमा के अलावा बहुत सारी दीगर मकामात पे, दीगर जगहों पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पसवंद सिफत व क़ैद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खंदान हंसता हुआ, गिरियान रोता हुआ, ये क़ैद के तौर पे है, एडजेक्टिव भी है, क़ैद के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिरख्शान सिफत व क़ैद। पसवंद दे इसमें ज़ात की पसवंद के तौर पे, जैसे बार से बारान, इसमें ज़ात हो गया ना, बारान किसी एक खास चीज का नाम है, ठीक है, इसमें ज़ात है। पसवंद इसमें जमा बनाने के लिए दानिशमंदान, बुजुर्गान, शाहान, पिसरान, मुख्तरान। पसवंद इसमें महल, जगह के सेंस में भी हम आन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईरान यानी आर्या की सरजमीन, खुरासान गील की जमीन सरजमीन गीलान, खुरास की सरजमीन खुरासान, नाम दो उस्तान दर शुमाल ईरान। पसवंद नाम सिलसिले, सिलसिलों के नाम के साथ भी हम आन लगाते हैं, जैसे हखामनिशी हखामनिशियान, अशकानी अशकानियान, सासानी सासानियान। इसी तरह से फैमिली नेम के साथ भी हम आन लगा सकते हैं, जैसे अहमदी अहमदियान, इमामियान, सूफियान, ये मुख्तलिफ। तो आपने देखा कि ये भी एक पॉइंट है ग्रामर के नुक्ते नज़र से। तो जो ग्रामर के पॉइंट्स थे जो 3-4 इसमें, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं मतन की तरफ, राइट। मतन पढ़ते हैं, फिर उसके अंडरस्टैंडिंग की तरफ हम चलते हैं, राइट। चले, मतन को आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लें। जी सर। जी। तारीख़ ईरान अज़-ज़माने ज़हूर इस्लाम ता हमला मुग़ल व हुदूद 6 कर्न मिरसद। ज़ुहूर पढ़ लीजिएगा, ज़ा के बजाय ज़ो। तारीख़ ईरान अज़-ज़माने ज़हूर इस्लाम ता हमला मुग़ल बेहुदूद 6 कर्न मिरसद। जी। सर दोबारा पढ़ो। उससे पहले के अदवार आपने देख लिया कि 1300 1350 साल थे ना उनके, कब्ल इस्लाम जी के। सर। ये अगर आप इस्लामिक पीरियड से लेकर इस्लाम के आने से मुग़लों के हमले तक का जो दौर अगर आप लें, तो फिर ये तकरीबन 600 साल, लगभग 600 साल के करीब तक दौर बनता है। ये एक पीरियड है, ये फिर उसके बाद ट्रांजिट हो जाता है, पूरा इस्लामिक पीरियड को मुग़ल आके कैप्चर करते हैं, तो एक नया दौर शुरू होता है, ठीक है। तो ये तकसीम किया हुआ इसको, ठीक है। चले पढ़े सिरे से, फिर से पढ़े। तारीख़ ईरान अज़-ज़माने ज़हूर इस्लाम ता हमला मुग़ल बेहुदूद 6 कर्न मिरसद। दर आगाज़ ई दौरे साले 14 हिजरी 14 हिजरी 636 मिलादी आराब मुसलमान पायतख्त शाहनशाही सासानी रा तसर्रुफ करदन व हुदूद दो कर्न बर ईरान तसल्लुत याफ्तन। अम्मा मिल्लत ईरान के दीन मुक़द्दस इस्लाम रा पज़ीरफ़्ते बूदन अस क़बूल हुकूमत जदीद खुददारी करदन। ईरानियान दर करन हाय सिब्बुम व रे पे साकिन रे को कर्न हाय सिब्बुम व 4 हिजरी। ईरानियान दर कर्न हाय सिब्बुम व 4 हिजरी नहुम व दहुम मिलादी चंद हुकूमती मिलादी दहुमे नुहुम अरे नो है ना, ये नह नहीं है, नहुम नहीं है, नोहुम व दहुम दह जी। नुहुम व दहम मिलादी चंद हुकूमत ईरानी तश्कील दादन के मुहिम तरीन आन्हा हुकूमत हुकूमत सामानियान व आले बुवेबूद बवे ये पढ़ते हैं, बवे पढ़ लीजिए, ठीक है। बवेयान बोलता है सब, ये पे हरकत है जी। सामानियान 20 सही से 20 हफ्तादो 279 ता 389
279 تا 379 89 सही से हिजरी पकड़िए। कमरी, ये हे काफ का मतलब है हिजरी कमरी। ठीक है सर। हिजरिया कमरी बीशतर दर मशरिक व एक मिनट मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ से आगे, आपकी अजान खत्म हो जाए तो बता दें। जी सर। ठीक है, सामानियान यानी 279 تا 389 هجری قمری بیشتر در مشرق و شمال شرقی ایران حکومت می‌کردند و پایتخت آنان بخارا بود. در دوره سامانیان ملیت ایرانی و فرهنگ و تمدن ایران زنده شد. دولت آل بویه 320 تا 447 هجری قمری که به دست پسران آل بویه ماهیگیر تشکیل شده بود، در مرکز و مغرب ایران حکومت داشتند و با تصرف بغداد بر خلفای عباسی تسلط کامل یافتند. از نیمه قرن چهارم هجری حکومت ایران به دست درباریان ترک نژاد آسیای میانه که در دربار سامانیان خدمت می‌کردند و کم کم به قدرت رسیده بودند افتاد و به این ترتیب حکومت‌های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان توسط آنان تأسیس شد. غزنویان 351 تا 582 هجری قمری بر مشرق و مرکز ایران و مغرب هند حکومت داشتند. سلجوقیان 429 تا 590 هجری قمری به کمک وزرای دانشمند ایرانی امپراتوری بزرگی به وجود آوردند و حکومت خوارزمشاهیان 490 هجری قمری تا 628 هجری قمری در شمال شرقی ایران تأسیس کردیم. در زمان حکومت خوارزمشاهیان گروهی از بازرگانان مغول به دستور حاکم خوارزمشاهیان در مرز ایران کشته شدند و حمله مغولان به این کشور در سال 616 هجری قمری 1219 میلادی آغاز شد. خب चलिए आप इसका तर्जुमा करें जी। सर अभी भी अजान हो रही है। ओके खत्म। चले मैं आपका तब तक कर लेता हूँ कि तारीख़ ईरान از زمان ظهور اسلام تا حمله مغول به حدود 6 قرن میرسد. ایران की तारीख इस्लाम के ज़हूर से मुग़ल के हमले तक तकरीबन 600 साल यानी 6 सदियाँ, 6 कर्न 600 साल या 6 सदियाँ बनती है। ईरान की तारीख यानी इस्लाम के ज़हूर से लेकर हमले मुग़ल तक तकरीबन 6 सदियों तक पहुँचती है। ये 6 सदियाँ बनती है, यूँ कह सकते हैं। दर आगाज़ इन दौरे, इस दौर के आगाज़ में यानी इस्लामी दौर के आगाज़ में साल 14 हिजरी 14 हिजरी कह लें आप, या 636 मिलादी या 636 मिलादी, इसमें क्या होता है, अरब अरब मुसलमानों ने पायतख्त शाहनशाही सासानी रा सासानी शहनशाहियत के दारुल हुकूमत को तसर्रुफ करदन, उसको फतह किया, उस पर कब्ज़ा किया। वह हुदूद 2 कर्न पर ईरान तसल्लुत याफ्ता और इन्होंने वो 200 साल ईरान पर तसल्लुत उनका तसल्लुत रहा या उनका तसल्लुत बरकरार रहा। ठीक है। अम्मा लेकिन मिल्लत ईरान की दीन मुक़द्दस इस्लाम रा पज़ीरफ़्ते बूदन, लेकिन ईरानी कौम जिसने इस्लाम मुबीन को दीन मुक़द्दस इस्लाम को कबूल किया था, आज कबूल हुकूमत जदीद खुददारी करते हैं, लेकिन जदीद हुकूमत को कबूल करने से ये लोग कतरा रहे थे। खुददारी करना, थोड़ा सा रिलेक्टेंट शो करना, ठीक है, थोड़ा सा ये लोग उससे खुददारी कर रहे थे, उसको नहीं मान रहे थे। अगर आपकी अजान ख़त्म हो गई है तो आप पढ़ सकते हैं। जी सर। ईरानी दर कर्ण
ईरानियान दर कर्न हाय सिवम व चाहरुम हिजरी, मतलब तीसरी और चौथी हिजरी में ईरानी, नहुम व दहम मिलादी, और दोनों सेम है, या ये ईरानी, जी ईरानियों ने, सब्जेक्ट ईरानियों ने तीसरी चौथी हिजरी कमरी, ठीक है, या जी सर 9वीं 10वीं ईस्वी में चंद हुकूमत ईरानी तश्कील दादा ने, इन्होंने कई ईरानी हुकूमतें तश्कील दी। ईरानियों ने इन अदवार में, इन सदियों में कई एक ईरानी हुकूमत की तश्कील की, ईरान जिसकी बुनियाद ईरानी थी। जी के मुहिम तरीन आनहा के उनमें से अहम तरीन हुकूमतें सामानियान व आले बवेहूद, उनमें से दो हुकूमतें जो सबसे बवेहूद। इसके जी अलावा ताहिरियान भी है, सफारियान भी है, और भी सारी बहुत सारी हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट्स भी है ना। देखें अल बवे पूरे ईरान पर, तो ये सामानियान देखें आपके आज के अफगानिस्तान है, खुरासान है, जो आज का ताजिकिस्तान है, ठीक है, इन इलाकों पर मुश्तमिल था। आ रही बात समझ में? जी सर। और आल बवे वो मगरबी इलाकों में उनकी हुकूमत थी, ईरान के मरकज में, जैसे इस्फहान से उस तरफ के इलाकों पर जो है मगरिब की तरफ, जिनको अरब कंट्रीज की तरफ जो ज्यादा उनकी सरहदें हैं, वहां की तरफ उनकी हुकूमत थी। जी पढ़े, तो हुकूमत तश्कील दी कि जिसमें से ये दोनों अहम तरीन है। जी सर। फिर सामानियान बीशतर दर मशरिक व शुमाली शर्कीय ईरान हुकूमत भी करदन, ज़्यादातर ये मशरिक में या शुमाल मशरिकी इलाके में ईरान की हुकूमत करते थे। व पाया तख्त आनान बुखारा बूद, और उनका पाया तख्त बुखारा था। दर बुखारा, तो दौरे सारे अदबियात में, उर्दू अदबियात में भी समरकंद और बुखारा का बहुत बड़ा तज़किरा है। जी सर। जी दर दौरे सामानियान मिल्लियत ईरानी व फरहंगो तमद्दुन ईरान जिंदा शुद। सामानियान के दौर में, सामानियों के दौर में, सामानियों के दौर में ईरान की कौमियत और उनके तारीखी और ईरानी कौमियत, ईरान की कौमियत नहीं, ईरानी जो कौमियत है, ईरानी नेशनलिज्म, ईरानियन नेशनलिज्म और उनका कल्चर और सिविलाइजेशन जिंदा हुआ। क्योंकि अरबों ने आने के बाद उनका कल्चर, उनकी जबान, उनकी मिल्लियत या उनकी कौमियत डोमिनेंट थी, तो बहुत सारी चीज़ें पस मंजर में चली गई थी ईरान की। सामानियों ने उस कल्चर को, अपनी असल कल्चर को जिंदा करने की कोशिश की। जी सर, ये सामानियान जो है, सामानी, ये इस्लाम के बाद आए, मतलब जी मुस्लिम बादशाहों की हुकूमत खत्म हो गई, उसके बाद ये खानदान आया है। देखें, मुसलमान हुकूमत आए तो डायरेक्ट उनकी हुकूमत थी, पहले उमवियों की हुकूमत थी। हजरत उमर के दौर में इन्होंने ईरान को फतह किया, ठीक है, उनके जो आखिरी बादशाह था उसको मारा, फिर जो है ना 3 दफा उनकी जंगें हुई, ईरान को कैप्चर किया। तो 200 साल तक पूरे अरबों की हुकूमत रही वहां पे, ठीक है, जिसमें बनु उमैया की और बनु अब्बास की हुकूमतें शामिल थी। आगे बात समझ में? लेकिन बनु अब्बास की हुकूमत में ये होता है कि वहाँ उनके दरबार में बास ईरानी गुजरा, और ईरानी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुए थे, ठीक है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ईरानी अक़वाम को आज़ादी मिली। उनको दाखिली मामलात में आज़ादी दे दी गई, लेकिन खुतबा पढ़ा जाता था उनके नाम पे, खलीफा के नाम पे, खलीफा अब्बासी के नाम पे, खलीफा उन्हीं के नाम पे वो पढ़ा जाता था। यहाँ तक कि सिंध में, बरसगीर में भी जो इलाके मफतूहा इलाके थे, यहाँ पे भी दाखिली हुकूमत तो थी, लेकिन खुतबा उन्हीं के नाम पे पढ़ा जाता था। तो इस तरह से थोड़ी सी उनको आज़ादी मिली, क्योंकि ये जो बुखारा है, जो समरकंद है, ये जो ताजिकिस्तान वगैरह अफगानिस्तान के दूर उफ्तादा इलाके थे, जो बगदाद से बहुत दूर थे, तो वहाँ पे उनकी हुकूमतें कमज़ोर पड़ गई थी। तो मकामी रईसों ने, मकामी उमरा ने हुकूमत अपने हाथों में ली। उनमें से एक हुकूमत का नाम है सामानी, आले सामान कहा जाता है। थे मुसलमान, लेकिन खिलाफत बगदाद से अलग उन्होंने अपनी ईरानी नेशनलिटी की बुनियाद पर हुकूमत तश्कील की। आगे तो समझ में? जी सर। दौलत आले बवे, मतलब इनका आले बवे की जो हुकूमत थी या जो इनका मुल्क था, वो 320 आले बवे की हुकूमत जी 320 हिजरी कमरी से 448 47
हिजरी ये कमरी देखिए, ये तक। जो दौर है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका दौर भी है, क्या नाम है आपके, गजनवियों का दौर है। जी ठीक है, सर। ये गजनवियों का, लेकिन ये गजनवियों की हुकूमत मरकज तक थी, मरकज से आगे आले बवेह की हुकूमत थी। ठीक। ठीक है, क्योंकि ये इसको ईरानी समझ रहे हैं और गजनवियों को ये समझ रहे हैं ईरानी को वो तुर्क थे। जी जी ठीक है, जी। चले। के बेदस्त पिसरान बवे माहिगी तश्कील शुदे बुद के ये हुकूमत जो जो आल जो मछेरे बवेह के बेटों के हाथों तश्कील पाई थी। जी। दर मरकज व मगरिब ईरान। ये जुमला मौसूले है, दौलत आले बवे की हुकूमत जो इनके हाथों तश्कील पाई थी, दर मरकज व मगरिब ईरान, ईरान मरकज में और ईरान के मगरिब में मगरिब हुकूमत दाश्तान, जो जो हुकूमत करती रखते थे। थी। जी, हुकूमत करते थे जी। ठीक है। बतसर्रुफ बगदाद बर खुलफाए अब्बासी तसल्लुत कामिल याफ्तन। जी, यानी सर वही जो बात अभी आपने बताई है कि वो नहीं उनका। वो तो बात की बात है ना, वो पहले, इनसे पहले इन्होंने भी, आले बवेह ने भी, उन्होंने हमला करके खुलफाए अब्बासी पर इनको कैप्चर किया था। तो उल्टा ये लोग जा गए थे, फिर बगदाद को जाके आले बवेह ने कैप्चर किया था। मुगल जो आए थे वो दूसरा हिस्से उसके बाद का है वाकया जी। अजनीमे अजनीमे दिव्वु में करने दो वो में, चहारुम हिजरी ये मैं वो में करने चाह रहा हूँ जी, जो थी के हिजरी के दूसरे निस्फ से, हुकूमत ईरान बदस्ते दरबारियान तुर्क। आप 350 से आगे देख सकते हैं, 350 से या 351 से जो गजनवियों का दौर शुरू होता है जी। ठीक। हुकूमत ईरान बेदस्त दरबारियान तुर्कनजात در آسیای میانه که در ایران در دربار سامانیان خدمت میکردن و کم کم به قدرت رسیده بودن افتاد. ये सब आप जो है ना, ये सारा जो जुमला है यहाँ तक, इसको हटा दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि हुकूमत ईरान यानी चौथी सदी हिजरी के दूसरे निस्फ में ईरान की हुकूमत तुर्क नजात दरबारियों के हाथों में पड़ी, उनके हाथ आ गई। हुकूमत किसके हाथ में आ गई? तुर्क नजात दरबारियों के हाथ में आ गई। यानी कौन तुर्क नजात दरबारी? यानी तुर्क नजात आसियाई मियाने, मरकजी सेंट्रल एशिया के तुर्क नजात दरबारियों के हाथ में आ गई। ये कौन थे ये लोग? कि दरबार सामानियन खिदमत नहीं करते व कम कम पे कुदरत रसीदे बुदन, जो सामानियों के दरबार में खिदमत करते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो उन्होंने कुदरत हासिल की थी, वो कुदरत तक पहुंचे थे, यानी कुदरत हासिल की थी, उनके हाथों में वो हुकूमत आ गया। आहिस्ता आहिस्ता उनके दरबार में पनपने लगे। ये अगरची सेंट्रल एशिया से ताल्लुक रखने वाले तुर्क थे, ये अज़बकिस्तान, ये सारे इलाके तकरीबन तुर्क के हैं जी। जी सर। व बे ई तरतीब, इस तरतीब से इस तरह हुकूमत है, इस तरह और इस तरह इस तरह हुकूमत है गजनवियान यानी गजनवियों की हुकूमत, सल्जुकियान सल्जुकियों की हुकूमत व ख्वारज़म शाहियान ख्वारज़म शाहियान ख्वारज़म शाहियान ख्वारज़म शाहियों की हुकूमत, यानी ये तीन सिलसिले हुकूमत, हुकूमत है गजनवी, सल्जुकी व ख्वारज़म शाही तवसुत आनंद तासिस शुद, और इन्हीं दरबारियों के तुर्क नजात सेंट्रल एशिया के तुर्क कौम के हाथों, दरबारियों के हाथों इन हुकूमतों की बुनियाद रखी गई जी। ठीक है, आपको ईरान की हिस्ट्री समझ में आ रही है ना आपको? जी जी सर जी, पढ़े। गजनवियान 351 से लेके 582 जी बर मशरिक व मरकज़ी ईरान व मगरिब हिंद हुकूमत दाश्तन, तकरीबन 230 साल तक हुकूमत की है जी। इन्होंने इन इलाकों में मशरिक ईरान के मरकज़ी ईरान और मगरिब हिंद, हिंदुस्तान के मगरबी इलाकों पे हुकूमत की। जैसे कि आपको पता है कि इनका एक तरफ हुकूमत लाहौर में था। जी सर। सल्जुकियान ने 402
429 से ये 429 से 550 590 तक 429 से जी 590 150 साल जी तक सर बेकुमा के वज़राए दानिशमंद ईरानी यानी सल्जूकियों ने ईरानी अक्लमंद दानिशमंदों की अक्लमंद नहीं अकल दानिशमंद दानिशवर कह सकते आप या साइंसदान तालीम याफ्ता एजुकेटेड ईरानी दानिशमंद वजीरों की मदद से इम्परातोरी बुजुर्गी बेवजूद आवर्दैन एक बड़ी शहनशाहियत उन्होंने तश्कील दी। वह हुकूमत खारज़मशाहियान और हुकूमत खारज़मशाहियों की हुकूमत यानी 490 था 628 इस अतवार में दर शुमाल शर्क़ी ईरान तअसीस कर दी। इस दौर में खारज़मशाहियों की हुकूमत ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में वजूद में आई। देखिए शुमाल मशरक़ी इलाकों में आप ईरान का मैप उठा के देख ले, उसके शिमाल शर्क़ी के इलाकों में अगर सारा देख ले तो पूरा खुरासान का, ताजिकिस्तान का, उज़्बेकिस्तान और ये सारे इलाके शामिल है। अब क्या होता है कि मुग़ल जो मंगोलिया से जाके मिलता है, जो जाके ठीक है, जो जाके मंगोलिया से मिलता है, मंगोलिया में ये जो ट्राइब्स है हलाकू खान, चंगेज़ खान वगैरह के जो कबाइल ज़िंदगी करते थे, वहाँ से कुछ ताजिर तिजारत के लिए ईरान की सरहद की तरफ आए थे, तो उन कुछ लोगों को वहाँ पे ताजिरों को मारा गया खारज़मशाहियों की हुकूमत में। वो बड़ी शहनशाहियत थी उनकी। उन्होंने अपने सफ़ीर भेजे कि आपके इलाके की किसी चोर ने, किसी ने भी, चाहे सिपाहियों ने हमारे सफ़ीरों को मारा है या उनको गिरफ्तार किया, लिहाजा उनका हर्जाना अदा किया जाए। तो बादशाह था, उसने सोचा कि यार ये तो छोटे मोटे कबाइल के लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे। तो कहा जाता है कि उनके सफ़ीरों को भी मारा, कि जो एलची बन के आए थे, ठीक है, उनको भी मारा। जिसके बाद जो है ना, जो इंतकाम की आग भड़की, जो जाके बगदाद में जिसने दम लिए, ये तो आप जानते हैं। वो पढ़े लास्ट पैराग्राफ। ज़माने हुकूमत खारज़्म है ये असल में, खारज़्म इलाका है, खारज़्म शाह, खारज़्म शाहियान, ख्वारज़्म शाहियान के इन ख्वारज़्म शाहियों की हुकूमत के ज़माने में गुरूही अज़ बाज़रगानाने मुग़ल के जो इनकी मुग़लों का तिजारती ग्रोह था, बदस्तूर हाकिम मुग़ल ताजिरों का एक ग्रोह खारज़्म शाह के हाकिम वक्त के हाथों, उसके हुक्म से, बेदस्तूर, ये भी वो बेवसीला, ये बेजरिया की तरह से, बेदस्तूर बादशाह के हुक्म से होता है, किसी के हाथों से होता है। दर मर्ज ईरान कुश्तशुदा, इनके हुक्म से कुछ ताजिर मारे गए। वह हमला ये मुग़लात किश्वर दर साल 616 हिजरी कमरी 1219 मिलादी आगाज़ शुद और ईरान पर इनके हमले जिसके नतीजे में शुरू हुए 616 हिजरी कमरी या 1219 आगाज़ में इसके हमले का आगाज़ हुआ। तो ये ईरान की तरह से ये हिस्ट्री है जो आपने पढ़ लिया। इससे रिलेटेड सवालात इंशाअल्लाह का हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।